آپ پراکٹر ہو کے فیک نیوز پھیلا رہی ہیں, سائبر کرائم کر رہی ہیں. سر اس بچی کے پیرنٹ سے بات ہو گئی ہے جس نے گروپ میں یہ شیئر کی تھی سب سے پہلے, وہ کہ اسی پیج کے اوپر پوسٹ کرے, ٹھیک ہے, کہ میں نے غلط نیوز سپریڈ کیا ہے, پھر اس کا اسکرین شاٹ لے کے آپ کو سینڈ کرے, ٹھیک, پھر وہ اسکرین شاٹ ہم شیئر کریں گے. تو چلو جو بچی کے جو دوستیں ہیں, کچھ طالبات ہیں جو اسے جانتی ہیں, انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہ کلیم کی ہے. وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ بچی جو ہے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ بچی جو ہے یہ اس کو جس طرح سے لے جایا گیا تھا, کچھ لوگوں نے دیکھا ہے, کچھ لوگوں نے تصویریں بنائی تھی, وہ تصویریں ڈیلیٹ کروائی گئی ہیں. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں مہرین سبتین, دیکھ رہے آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. ناظرین, اگر اس موضوع پہ میں آواز نہیں اٹھاؤں گی, اگر میں بات نہیں کروں گی, تو میرا ضمیر مجھے ہمیشہ ملامت کرے گا. گو اس ادارے کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں نے اس ادارے کو بہت اچھا پایا. میں بات کر رہی ہوں دنیا نیوز کی. میاں عامر صاحب جو کہ دنیا نیوز کے مالک بھی ہیں اور پنجاب گروپ آف کالجز کے مالک بھی ہیں, اور میں کہوں گی کہ میں نے وہاں پر بہت عزت پائی, بہت اچھے سے کام کیا. اختلافی نوٹ بابر راوان صاحب کے ساتھ میں کرتی تھی, اور وہاں پر کام کرتے ہوئے میں نے اس ادارے کو بہت اچھا پایا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ اگر کوئی واقعہ ہے تو میں اس کو رپورٹ اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ اس ادارے نے مجھے بہت عزت دی, یا اس ادارے کے جو مالک ہیں ان کو میں نے ایک اچھا انسان پایا. خواتین کی وہاں پہ میں نے عزت بھی دیکھی اور میرے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک کیا گیا. اب یہ سب چیزیں ایک سائڈ پر رکھ کر ایک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے, اور اس واقعے کو ہم نے رپورٹ کرنا ہے کیونکہ میں بھی صاحب اولاد ہوں, میری بھی بیٹیاں ہیں, اور جو بھی صاحب اولاد ہیں وہ اس درد کو اور زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. جب ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر کی چار دیواری سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں, یعنی کہ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں, وہ بھی ایک چار دیواری ہوتی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اپنے گھر سے بھی زیادہ محفوظ ہیں, کہ وہاں پہ گارڈز ہیں, وہاں پہ ٹیچرز ہیں, وہاں پہ پرنسپل ہیں. شاید ہم وہ آنکھ نہیں رکھتے جو وہ رکھتے ہیں, اور ایسا ہوتا بھی ہے, بہت سے اداروں میں بہت اچھے سے دیکھا بھی جاتا ہے. لیکن اگر کسی ادارے میں خدا نخواستہ کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو اس معاملے کو ہینڈل کرنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. جب میں نے یہ واقعہ سنا, میں اس وقت ٹریولنگ میں تھی, میں نے میاں عامر صاحب کو بھی ایک میسج کیا, اور میں نے ان کو کہا کہ مجھے, کیونکہ بہت سے پیرنٹس جو ہے وہ اپروچ کر رہے تھے, اور میں نے ان سے ایک کمیونیکیشن ہوئی, اس پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں, لیکن میں آپ کو پہلے ذرا اس واقعے کے بارے میں بتاتی ہوں. اور اب بڑی ہی خوفناک کچھ تفصیلات مجھ تک پہنچی ہیں, تکلیف دہ ہیں, دل دہلا دینے والی ہے. ابھی آغاز میں آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ سنا, آپ نے اس میں سنا کہ کس طرح سے پرنسپل کیا کہہ رہی ہیں, آپ نے سنا اس میں کہ ایک ٹیچر کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد کچھ خبریں مجھ تک یہ بھی پہنچی کہ جی یہ سب کچھ فیک ہے, یہ کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور وہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں, یہ سیاست سے اوپر کی چیز ہے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ ایک بچی کی زندگی کا معاملہ ہے. ماں باپ کی ایک پوری زندگی جن بچوں کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, بچے جو ان کی زندگی کا محور ہوتے ہیں, ان سے متعلق ہے. اب میں آپ تک پہنچاتی ہوں وہ تمام خبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں مختلف ذرائع سے. میں اگر کسی چیز میں غلط ہوئی یا کوئی خبر میری طرف سے غلط گئی, میں اس کے لیے معذرت بھی کروں گی اور میں آ کے اپنے پروگرام میں بتاؤں گی بھی. لیکن ابھی تک جو خبریں مجھ تک پہنچی وہ بہت ہی مستند ذرائع سے پہنچ رہی ہیں. میں اس بچی کو اور اس کی فیملی کو بھی جانتی ہوں, لیکن میں اب نام نہیں لوں گی. جانتی سے مطلب یہ ہے کہ مجھے انہی کی جاننے والی ایک فیملی نے مجھے بتایا ہے اور کچھ چیزیں مجھ سے شیئر کی ہیں. میں ان کو بھی جان گی, نہ میں نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہے اور نہ میں ان کا کبھی نام لوں گی. لیکن میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھ تک جو باتیں پہنچی ہیں وہ کیا ہیں. بیسیکلی یہ معاملہ جو ہے یہ پنجاب گروپ آف کالجز کا ایک کیمپس ہے. یہ آپ جہاں پہ بچے ایف ایس سی پری میڈیکل کری, یہ وہ والا کیمپس ہے. اور یہ کیمپس جو ہے یہ بڑا ایک گارڈڈ کیمپس ہے باقی کیمپسز کی طرح. پنجاب گروپ آف کالجز کی ایک بڑی دھوم بھی ہے پڑھائی کے حوالے سے, ان کے اسٹوڈنٹس کے جو مارکس ہیں ان کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے اس ادارے کا, تو نو ڈاؤٹ اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے. اب یہ ادارہ جو ہے یہ حفیظ سینٹر کے پاس لاہور میں, جو لوگ جانتے ہیں یہ وہاں پر ہے, اور اس طرح کے بہت سے ان کے کیمپسز ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ یہ صرف پری میڈیکل کا ایک کیمپس ہے جہاں پر ہزاروں طالبات یہاں پہ پڑھتی ہے. اسی کی بیک سائڈ پہ بوائز کا کیمپس بھی ہے. یعنی کہ ایک ایسا کیمپس ہے جو صرف آپ سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے کئی کیمپسز ہیں, یہ تو صرف ایک پری میڈیکل کیمپس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا نام ہے پنجاب گروپ آف کالجز, پورے پاکستان میں آپ کہیے کہ اس کی چینز جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں. اب جناب کیا ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ایسی بات بھی کی گئیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا. یہ کہا گیا جی کہ یہ تو بچی کی اپنی مرضی خدا نخواستہ شامل تھی. استغفر اللہ, وہاں پہ موجود لڑکیوں نے ویڈیوز بنائی تھی, کچھ لوگوں نے تصویریں بنائی ہیں, کچھ لڑکی نے تو نہیں بلکہ کسی اور نے ویڈیو بنائی جو ایک لڑکی تک پہنچی. سننے میں آیا کہ اس لڑکی کا موبائل فون جو ہے وہ بھی اٹھا کر پھینکا گیا, توڑا گیا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بچی جو ہے
इसको बुलाया जाता है इस बहाने से कि गालबन कुछ वैन वाले को इसने फ़ीस देनी है या वैन वाले ने बुलाया है या क्या है। ये बच्ची जो है ये बेसमेंट में जाती है। अब मैं आपको बताऊँ कि कुछ कॉलेज इस तरह का है कि यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है उसके बाद ऊपर 2 और फ्लोर्स हैं और जो नीचे बेसमेंट है वहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग होती है। वालिदैन जिन्होंने बच्चों को पिक करना होता है या तो वो बाहर आते हैं या जिनको थोड़ा देर होती है तो वो नीचे भी चले जाते हैं अंदर बेसमेंट में। अब बेसमेंट में गाड़ियाँ पार्क भी होती हैं, टीचर्स की भी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने भी अगर अंदर जाना है, प्रिंसिपल से बात करनी है, टीचर्स से बात करनी है या अपने बच्चे का वेट ही करना है तो वो भी नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। अब मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि एक ऐसी जगह बेसमेंट जो एक हैपनिंग जगह इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वहाँ पे कोई ना कोई गाड़ी आ रही होती है, जा रही होती है, वहाँ पर इस बच्ची को नीचे बुलाया गया। अब वहाँ पर नीचे हमेशा गार्ड्स भी बैठे होते हैं, उन गाड़ियों के पास गार्ड्स भी बैठे होते हैं। 2 से 3 गार्ड्स वहाँ पर देखे जाते हैं। जो लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि वहाँ पर 2 से 3 गार्ड्स होते हैं। कोई ना कोई ड्राइवर भी उनके साथ बैठा ही होता है। अच्छा, अब उसके बाद जब ये बच्ची जो है इसको नीचे बुलाया और उसके बाद फिर इसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। फिर एक गार्ड और एक ड्राइवर ने बच्ची के साथ मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा है कि ज़्यादती की और उसके बाद ये चूँकि टाइम जो है छुट्टी के बाद का वाला हो गया था और उसमें यह है कि खामोशी सी हो गई थी और उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्होंने उसको कुंडी लगाई और उसके बाद जो है वो वहाँ से चले गए। अब गार्ड तो वहाँ पे मौजूद ही था, या तो उसका इरादा क्या था नहीं था, लेकिन वो बच्ची जो है वो वहाँ पर थी और वो नीम बेहोशी की हालत में थी। बच्ची को कहीं होश आता है और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से चीखती है, चिल्लाती है। देर काफ़ी हो गई थी लेकिन खुदा की तरफ से वहाँ पर एक टीचर जो है वो मौजूद थे। उन्होंने ये चीख पुकार जब उस बच्ची की सुनी है तो वो फ़ौरन वहाँ पर पहुँचते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद जब वो हालत देखते हैं और मामलात देखते हैं और उसकी संगीनी देखते हैं, 15 पे फ़ोन करते हैं, मैनेजमेंट को फ़ोन करते हैं, प्रिंसिपल को फ़ोन करते हैं और उसके बाद इस बच्ची को वहाँ पे एम्बुलेंसेस भी देखी गई, पुलिस को भी देखा गया और उसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। बच्ची के पेरेंट्स नहीं चाहते हरगिज़ कि उनकी बच्ची का नाम लिया जाए, कहीं भी कोई डिस्क्लोज़ किया जाए, ना वो मीडिया पे आना चाहते हैं, ना वो कोई बात करना चाहते हैं। ये भी मेरे सुनने में आया है कि पूरी जो मेडिकल फैसिलिटी है इस वक्त वो बच्ची को दी जा रही है और पूरा उसको देखा जा रहा है इदारे की तरफ से। लेकिन उसके बाद जो अगला काम होता है वो बहुत ही गलत होता है। ये गुफ्तगू मैंने एक मैसेज के फॉर्म में मैंने मियां आमिर साहब को भी किया और मैंने कहा कि ये मामला जो है इसको हैंडल करने का तरीका मुख्तलिफ हो सकता था। एक बात तो हो गई, इस पर आप ये नहीं कह सकते कि जी ये कोई मियां आमिर साहब ने मतलब गलती की है या किसी ने करवाई है या क्या, नहीं। एक मियां आमिर वो है जिनके नीचे बहुत से चेन्स हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं, बहुत से ग्रुप्स हैं। अब उसके बाद आगे लोगों की जिम्मेदारी है चीज़ों को देखना, लेकिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम बनाना जो है वो आगे इदारे का काम है और उसकी ज़िम्मेदारी जो है उनके कंधों पे भी आती है, जाहिर सी बात है। यानी कि ज़िम्मेदारी सेंस में कि वो भी जवाबदेह है जब उनके इदारे में कोई चीज़ जो है होती है अगर। अब उसके बाद प्रिंसिपल ने जिस तरह से इस मामले को संभाला है, अब ये नहीं मालूम कि अहकामात कहाँ से सादिर किए गए, क्योंकि मैं आपको एक ऑडियो शुरू में सुनवा चुकी हूँ। ये ऑडियो ज़रा दोबारा सुनिएगा। ये प्रोफेसर साहब हैं जो कि कह रहे हैं कि सर मैंने ये काम कर दिया है। क्या काम कर दिया है, ज़रा सुनिएगा। सर, उस बच्ची के पेरेंट्स से बात हो गई है जिसने ग्रुप में ये शेयर की थी सबसे पहले, वो कि उसी पेज के ऊपर पोस्ट करे, ठीक है, कि मैंने गलत न्यूज़ स्प्रेड किया है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको सेंड करे, ठीक, फिर वो स्क्रीनशॉट हम शेयर करेंगे। जी, ये आपने सुना। अब जरा एक दफ़ा दोबारा से प्रिंसिपल साहिबा क्या कह रही हैं, ज़रा वो भी सुनिएगा। आप प्रॉक्टर होके फेक न्यूज़ फैला रही हैं, साइबर क्राइम कर रही हैं। ये जी, यानी कि ये तो प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि आप लोग फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और वो जो टीचर है वो कह रहे हैं कि हमने कह दिया कि आप कहें कि जी ये जाली खबर है या झूठ बोला था, झूठी खबर फैलाई थी। अब मामला यह है कि एक खबर जो है वो एक बच्चा नहीं कह रहा, 2 बच्चे नहीं कह रहे, सब लोग कह रहे हैं। आज पूरा दिन एहतजाज होता रहा। लड़कों को बाकायदा तौर पर डंडे मारे गए और वो डंडे जो है वो उनके निशानात उन्होंने अपनी कमर से कपड़ा हटा के दिखाए भी है। वो मनाजिर तो मैं नहीं दिखा सकती। उसके बाद वज़ीर तालीम पंजाब जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और उन्होंने कहा कि हमने इसे मुअत्तल कर दिया है इस स्कूल की, इस कॉलेज के रजिस्ट्रेशन को, और अगर ये चीज़ जो है ये प्रूव हो जाती है कि वाक़तन ये सब कुछ हुआ है तो फिर इससे भी स्ट्रिक्ट एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे, क्योंकि हम भी साहिब औलाद है और अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो हम इस बात की इजाज़त हरगिज़ नहीं देते। ये ज्यादती वाला इंसिडेंट है, ये रिपोर्ट हुआ वो ये है कि उसमें प्रिंसिपल ने मिलके कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलके वो वीडियो और ऑडियो एविडेंस ही डिलीट कर, जिसके अंदर सारे सबूत थे, उन्होंने जाके उन्होंने रिपोर्ट किया प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल ने उन बच्चों की बात सुनने की बजाय उन्होंने एब्सोल्युटली साइड ली है इंतजामिया की।
ना उस बच्ची की सुनी है ना स्टूडेंट्स की। बात समझ आती है। पंजाब कॉलेज के रजिस्ट्रेशन उन्होंने कहा कि सस्पेंड कर दी गई है। ये चीज़ें भी हुई सारा दिन। लेकिन अब क्या होता है कि बच्ची जो है, एक बच्ची जिसके मोबाइल में ये तमाम फुटेजेस मौजूद थी, जिसमें देखा गया था कि उस लड़की को स्ट्रेचर पे डाल के ले जाया जा रहा है। उस लड़की का मोबाइल जो है प्रिंसिपल ने, ये कहा जा रहा है, मुबैन तौर पे तोड़ के फेंक दिया। सबूतों को मिटाया गया, लोगों के मोबाइल ले लेकर मैसेजेस जो है वो डिलीट किए गए, तस्वीरें डिलीट की गई। ये कहा जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ कि अपने अंदर एक बहुत बड़ा क्राइम है। क्राइम को छुपाना ये बहुत बड़ा क्राइम है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी गार्ड को पता नहीं बचाया जा रहा है और इसमें शायद और बड़े बड़े लोग जो हैं वो शामिल हैं और इस वजह से गार्ड कह के पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। तो आप यकीन मानिए, जितना मैंने अभी तक पता किया है, ऐसा मामला हरगिज़ नहीं है। मामला गार्ड का और ड्राइवर का ही है। लेकिन मामला जो है वो इसलिए संगीन हो गया है कि इंतज़ामिया ने उसको हैंडल बड़ा गलत किया है, बजाय इसके कि वो उस शख्स को पकड़ते और उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाते और जहाँ पर लूप होल्स हुए हैं, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, उसको देखते और उसको एड्रेस करते। बच्चों को चुप कराया गया, बच्चों को डांटा गया, बच्चों को सस्पेंड करने की धमकियां दी गई। ये सब चीज़ें जो है, जो बच्चे स्टूडेंट्स जो क्लेम कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये बड़ी ही तशवीशनाक है। बच्चों ने यहाँ तक मैसेजेस सर्कुलेट किए कि जब आप लोग एहतजाज के लिए आएंगे तो अपने चेहरों पर मास्क लगा लीजिएगा, ये ना हो आपको पहचान कर आपके साथ पे कोई ज़्यादती ना हो जाए। जब उसके बाद कुछ चीज़ें ये भी हो रही हैं कि जहाँ पर इन लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, इस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की गई। हम समझते हैं कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ होनी चाहिए। ये भी कहा गया कि जो कैमराज़ वहाँ पे लगे हुए हैं उन सब की फुटेजेस को डिलीट कर दिया गया। ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज़ को सामने आना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो तर्जुमान हैं उन्हें सामने आना चाहिए, पूरी बात को क्लियर करना चाहिए। एक सिक्योरिटी लैप्स हुआ, एक मिसहैप हुआ, एक बहुत बड़ा सानहा जो है वो हुआ, तो उसकी क्लैरिफिकेशन और उसकी पूरी डिटेल्स जो है सामने आनी चाहिए। और जो लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं, यानी कि जिनकी तरफ से गफलत भी बरती गई, जिन लोगों की वजह से इस तरह के लोग जो है अंदर फिरते रहते हैं। ये ड्राइवर जो है, ये क्या कॉलेज की बस का ड्राइवर था या ये एक आम ड्राइवर, बाहर का बंदा तो अंदर इस तरह से नहीं आ सकता। तो ये ड्राइवर जो है, इसकी डिटेल्स क्योंकि सुनने में आया कि लाहौर से कहीं बाहर मुज़ाफ़ात के इलाकों से इसे गिरफ़्तार किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, और ये जो आपका चौकीदार था, ये सब कौन थे, क्या था, ये सब चीज़ें जो है ये सामने आनी चाहिए। और ये प्रिंसिपल और शवाहिद छुपाने वाले तमाम लोगों को गिरफ़्तार भी किया जाना चाहिए और उनसे सवाल होना चाहिए। उन्हें इस चीज़ के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटा मामला नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख के सोचिएगा, क्योंकि बेटी चाहे किसी अमीर की हो, गरीब की हो, बेटी तो बेटी होती है। और बेटी जो है वो दिल का सुकून होती है, आंखों का नूर होती है। और इस मामले को ईजी नहीं लेना चाहिए और पता लगना चाहिए कि कौन कौन इस तमाम कार्रवाई में शामिल है। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ ये वारदात करने वाले नहीं, बल्कि इसको छुपाने वाले, इसका साथ देने वाले, इस पर पर्दा डालने वाले, लोगों को डराने धमकाने वाले, सब के सब जो है वो ज़िम्मेदारान हैं और उन्हें कटहरे में लाया जाना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसमें मज़ीद अपडेट्स मुझ तक पहुँच रही हैं, कुछ वालिदैन मुझे अप्रोच कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, जो बच्ची के जो दोस्तें हैं, कुछ तालिबात हैं जो उसे जानती हैं, उन्होंने भी ये बात जो है वो क्लेम की है। वो भी ये कहती हैं कि बच्ची जो है उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। और वो ये भी कह रही हैं कि ये बच्ची जो है, ये इसको जिस तरह से ले जाया गया था, कुछ लोगों ने देखा है, कुछ लोगों ने तस्वीरें बनाई थी, वो तस्वीरें डिलीट करवाई गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के पास वो तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं। तो वो तस्वीरें अगर हम तक पहुंचती हैं तो हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। यूट्यूब की पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सब कुछ करना होगा। बल्कि यकीनन शायद मैं अभी आपके साथ वीडियो बना रही हूँ, थोड़ी देर में मुझ तक पहुँच जाएंगी, लेकिन चूँकि देर हो रही थी, मैं आपको ये अपडेट्स देकर मैं अगली स्टोरी में आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे कहा गया है कि हम आपके साथ वो तस्वीरें और तमाम चीज़ें जो है शेयर करेंगे, इस उम्मीद पर कि हमारा नाम सामने नहीं आना चाहिए। तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।